Good morning, student. Today we are going to start a new unit number 3, Run. Here we have given a very interesting poem. Let's enjoy it. The title of the poem is Run. The poetess is Marie Donnet. Okay, let's sing the poem. Enjoy it. Sing it with me. Away from the city and into the sun, out to the country, run, 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 run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze, run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again, run and be merry all through the day. Run to the country, away, away. Here, as the title of the poem suggests, the poet is telling children to run away from the city. Away from the city means she asked them to run away from the crowded cities into the open countryside. Out to the country means into the open countryside where they can see the clear sky and feel as if they are running into the sun. इसमें जो पोएटिस है वो बच्चों को बता रही है कि you should run and where, not in the cities but outside the cities, जहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, out the country, मतलब कि बहुत ही खुले हुए मैदान जहाँ पर हमें मिले, हमें वहाँ पर दौड़ना चाहिए. इन द विलेजेस वी हैव टू लुक इनटू द विलेजेस. जैसे कि आपको इसमें पोएम में बहुत अच्छा सा विलेज का एक सीन दिखाया गया है. देयर आर सो मेनी ट्रीज and very very open area where the children are playing. So in that kind of areas, poets want children to run. In the second stanza, you see run in the raindrops means here also the poetess asks the children to run even when it is raining and enjoy the raindrops falling on him. She asked them to run in the shadow of the trees and to have competitions of running with the blowing winds, as they will make them happy, energetic and give them a feeling of achievement. मतलब कि अगर बारिश की जो बूंदें हैं, रेन ड्रॉप्स मतलब कि बारिश की बूंदें, उनको भी फील करें while running beneath the trees, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है. The children are playing under the trees. Run little races मतलब कि कुछ रेसेस की जाएं और उसमें उन रेसेस को एंजॉय किया जाए with each little breeze, with cool air के साथ. जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, तो that air we feel to our body is very cool. It give actually us a very cooling effect. तो पोएटिस क्या कह रही है कि ऐसे ही एरिया में, खुले एरिया में नेचर को फील करते हुए हमें क्या करना है, दौड़ना है. रन द थर्ड स्टेंजा देखिए. रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन. In this stanza, she asks the children to enjoy the thrill of running down the hill slope, running up lanes and through meadow. Meadow क्या होता है? That area that feels crowded with different animals, and then to run back to their homes. Then run back to their homes. ऐसे सब एरियाज में आप नई नई तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करो. एक थ्रिल होता है हिल साइड, हिल स्लोप पे एकदम से दौड़ते हुए जाना, मीडो एरियाज में. एंड देन ये सब इंजॉय करने के बाद पोएटिस बोल रही है देन टू रन बैक टू देयर
homes, अपने घर वापस आ जाओ. Run and to be merry, run and be merry all through the day. Run to the country, away, away. In the last stanza, fourth stanza, she summarizes that by running all around, they will be cheerful and happy all through the day. मतलब अगर हम सुबह सुबह एक रनिंग ऐसे एरियाज की सब चीज़ों को फील करते हुए अगर करेंगे तो हमारा पूरा दिन हमें क्या होगा, एक चीयरफुलनेस रहेगी हमारे अंदर. हम एक खुशी महसूस करेंगे, हमारे अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाएगी. बाय बीइंग हैप्पियर, और अगर हम जब हैप्पी होंगे, रन टू द कंट्री अवे अवे, अगर जब हम हैप्पी होंगे अंदर से, देन हमारे अंदर जो एक सक्सेस है वो अपने आप ही आ जाएगी. एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस. आजकल की लाइफस्टाइल में हम लोगों को हैप्पी रहना, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तभी हम अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं. अगर हम खुश नहीं होंगे तो हम अपने एम्स को भी अचीव नहीं कर पाएंगे. तो ये बहुत ही अच्छी सी पोएम है जिसमें पोएटिस एक्चुअली एक मैसेज देना चाह रही हैं दैट the running is the easiest exercise for everyone, and so she asks all children to run away from the crowded cities into the countryside to enjoy the vast fields, clear sky, and feel as if they are running into the sun. मतलब कि इतनी इजी एक एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, हम नेचर को फील कर सकते हैं. सुबह सुबह अगर हम रनिंग करेंगे तो वी कैन फील द नेचर, वी कैन सी द बर्ड्स, उनकी सिंगिंग को हम सुन सकते हैं. तो रनिंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स भी प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स मतलब कि बारिश की बूंदें, ड्रॉप्स ऑफ द रेन्स. बीनीथ मतलब अंडर समथिंग, जैसे कि यहाँ पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं तो बीनीथ द ट्रीज. ब्रीज मतलब कि एक कूल विंड. हिल साइड मतलब कि स्लोपी हिल्स जो होते हैं, दैट हिल साइड. मीडो मतलब कि दैट एरिया दैट इज क्राउडेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. मैरी मतलब कि एक चीयरफुल, एक happiness of something. So these are the new words coming in this poem, and this poem is very beautiful. You should read it, enjoy it and learn it. इसको पढ़िए, बार बार इसको enjoy करिए. इसका मतलब बहुत अच्छा है और अपनी एक लाइफस्टाइल में इस चीज़ को लेके आइए. और जो जगह आपको अच्छी लगती है, जो क्राउडेड नहीं है, जैसे कि फील्ड्स हैं आपके, कोई भी पार्क है, वहाँ पर खूब दौड़ लगाइए. एंड ये पोएम ज़रूर पढ़िए और इसको एंजॉय करिए, याद करिए, लर्न इट ऑल्सो, एंड न्यू वर्ड्स को लर्न करिए. थैंक यू.